Welcome again. We are continuing the lesson Applied History from 10th standard. Okay. In previous video, we see what is applied history, what is the importance of study, knowledge of study, then applied fields, research in various fields, applied history in various research fields like philosophy, science, technology, industry and commerce, management studies, arts, humanities, etc. Okay, in this video we are continuing the next point, that is applied history and our presence. History of heritage. The visible and invisible relics of the past exist in present. These relics represent the creative thoughts and traditions of our ancestors. It is our heritage which gives us identity. It is necessary to preserve and conserve not only for our benefit but also benefit for future generations. Uses of history, applied history. To conserve, preservative, tangible and intangible heritages, that creates opportunity for the employment, to helps to understand the present with the help of history. It helps to find out right direction for the benefit of our future. Okay, then management and cultural and natural heritage. Cultural and natural heritage. Cultural heritage, it is divided into two, tangible and intangible. Tangible cultural heritage and intangible cultural heritage. Okay, then tangible, ancient sites, buildings, monuments, artifacts, manuscripts, sculptures, paintings, etc. These are tangible cultural heritage. Tangible means we can touch, see, feel, all these things. Intangible, we cannot touch, we only feel. We cannot see, but only we feel. Oral traditions and their languages, traditional knowledge, social customs and rituals of celebrating festivals, styles of performing arts, certain traditional skills, communities, groups who represent such traditions, customs and skills. These are intangible, that means we cannot touch, feel, see, observe like this, but we can only feel, that is intangible. And second part, that is a natural heritage, flora, fauna, ecology, demographic characteristics. These are intangible, natural heritages. List of world heritage. To preserve and promote our natural and cultural heritage for the benefits of a future generation, UNESCO, the global organization, have been some directions. On the basis of those directives, the list of our sites, traditions are declared as a world heritage. From the India, it includes temples, caves, Taj Mahal like architectural wonders and national parks. From Maharashtra, it includes caves from Ajanta, Verur and Gharapur in Mumbai. Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus and Khas plateaus in Satara districts of Western Ghats are also included in the World Heritage Sites. Conservation and preservation. Archaeology Survey of India and State Department of Archaeology is in charge of preservation and conservation of our cultural heritage. INTEC, Indian National Trust of Arts and Cultural Heritage, is actively working in this field. It requires participation of experts from the various fields. Applied history can be useful to create awareness about the cultural, social and political history of heritage site. Then, benefits of conservation and preservation of our heritage. We can preserve, conserve and develop the heritage site without causing any changes in its original state. We get information about the social structure, challenges faced by the local people and their expectation. Preservation, conservation and development of heritage is possible without hurting sentiments of the local people.
Local people participation in the project can be facilitated. Planning should be done in such a way that local skills will get encouragement and they will get a better employment opportunities in the livelihood. Okay, then उपयोजित इतिहास और वर्तमान, that is applied history and heritage. इतिहास के बारे में हमको बार बार ये पूछा जाता है, इतिहास का दैनंदिन व्यवहार में उपयोग क्या होता है। उपयोजित इतिहास, जिसको हम अप्लाइड हिस्ट्री बोलते हैं, उसके जवाब में ही इस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाता है। भूतकाल में जो मूर्त और अमूर्त स्वरूप में जो अवशेष वर्तमान में अस्तित्व में है, उसके बारे में अपने मन में एक तरह का कुतूहल, जिज्ञासा रहती है, एक तरह की आत्मीयता होती है। उस अस्तित्व का, उस चीज़ के अस्तित्व का इतिहास हमको समझ के लेने जैसा लगता है। मतलब हमारे अंदर की जिज्ञासा होती है, ये इतिहास क्या है, इसके बारे में इतिहास क्या होता है, मूर्त स्वरूप में वो चीज़ हो या अमूर्त स्वरूप में हो। मतलब मूर्त स्वरूप में जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसका कोई शेप साइज हो सकता है, लेकिन अमूर्त में जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं, जैसे कि परंपरा है, जो भाषा है बोलने वाली, उस भाषा को हम फील कर सकते हैं। ये जो परंपरा है उसके बारे में हमको जिज्ञासा या कुतूहल, एक तरह की आत्मीयता होती है। हमारे जो पूर्वजों ने जो निर्माण किया हुआ जो कलाकृति है, उसकी परंपरा है, उनकी परंपराओं के जो अवशेष है, ये हमारे सांस्कृतिक वारसा में आते हैं और वो हमारी पहचान होती है। हमारा इतिहास ही हमारी पहचान होती है। इतिहास का ज्ञान हमको हमारे उगम तक लेके जा सकता है। वो एक हमारा सांस्कृतिक वारसा होने की वजह से हमारे आगे आने वाली पुश्तों के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए दीर्घकाल तक उसको हम जतन करना चाहते हैं, उसका संवर्धन करना चाहिए, उसकी आवश्यकता है। जो चीज़ हम संभाल के रखते हैं, जो हमारा इतिहास है, हमारी परंपरा है, हमारा जो पहचान, हमारी खुद इंसान की जो पहचान है, वो पहचान को हम जतन करके अगले पीढ़ी को हम दे सकते हैं। उसके इतिहास, जो हमारा इतिहास, इस तरह से हमको वर्तमान में उपयोग में ला सकते हैं। उसके ज़रिए कुछ हमको रोज़गार की संधियाँ भी मिल सकती है, जैसे कि पर्यटन। सब मान लीजिए अजंता और एरोला हो, या मुंबई का जो एलिफेंटा जो है, वहाँ पे जो रोज़गार की संधि लोगों को मिल सकती है। उसके लिए वहाँ के स्थानिक लोगों का भी सहभाग इसमें ज़रूरी है। जब तक स्थानिक लोगों की किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब न करते हुए उस चीज़ को हम संभाल के रख सकें, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो इतिहास, वो पहचान, वो परंपरा, वो संस्कृति हम बता सकते हैं। इसके लिए वो संवर्धन की ज़रूरत होती है और उसके लिए इतिहास का उपयोग हम दिशा दर्शक के तौर पर आगे आने वाली पीढ़ी को कर सकते हैं, या ऐसा अप्लाइड हिस्ट्री का हम वर्णन कर सकते हैं। भविष्य काल के लिए एक दिशा दर्शक के तौर पर उसका उपयोग कर सकते हैं। जो सांस्कृतिक और नैसर्गिक वारसा जो है, जिसको हम सांस्कृतिक वारसा जो बोलते हैं, वो मानव निर्मित होता है, या मूर्त रूप में या अमूर्त रूप में। मूर्त रूप में जैसे कि प्राचीन स्थल हो, मंदिर हो, वास्तु हो, शिल्प हो, हस्तलिखित हो या पेंटिंग्स हो, वो मूर्त स्वरूप में सांस्कृतिक वारसा पे तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे कि जिसको हम टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक वारसा जिस प्रकार में मौखिक परंपरा, जो मुंह से बोली जाती है भाषा, वहाँ पे उपयोग में लाने वाली भाषा, पारंपरिक ज्ञान, सन जो हम फेस्टिवल्स, हमारे उत्सव जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उनकी पद्धति, उसका धार्मिक विधि, कला जो है वो सादर करने की जो पद्धत है, जो जिस तरीके से वो कला को हम सादर कर सकते हैं, पारंपरिक जो वैशिष्ट है, हमारी कौशल्य है, विशिष्ट तरह का कौशल्य उन लोगों में होता है, और इस चीज़ों का जो गट है
समूह है उसको हम अमूर्त सांस्कृतिक वारसा या इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोल सकते हैं। और तीसरा नैसर्गिक के बारे में हम जो नैसर्गिक जो हमारी हेरिटेज है उस संकल्पना में प्राणी या वनस्पति सृष्टि इनके अस्तित्व के बारे में होने वाली परिसंस्था और भू रचना के बारे में वो नैसर्गिक तौर पर हम देख सकते हैं नेचुरल हेरिटेज के। जो हमारे आगे आने वाली पुश्तों के लिए, हमारी पीढ़ियों के लिए उसका जतन होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ नामशेष हो रही है उसका संवर्धन, उसका जतन होने के हेतु से यूनेस्को नाम की एक जागतिक संगठन निर्माण हुई और उसने कुछ दिशा दर्शक तत्व रखे हैं। उस दिशा दर्शक तत्व के आधार पर हमारे जो स्थल है, हमारी जो परंपरा है, उसकी एक लिस्ट बनाई गई है। भारत की जो मौखिक और अमूर्त वारसा जो है उसमें से, जिसको हम एक दृष्टिक्षेप या एट ए ग्लांस बता सकते हैं, जो नेशनल हेरिटेज के इसमें आते हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। 2001 में केरल की सांस्कृतिक नाट्य परंपरा कुटियट्टम, 2003 में वैदिक पठन परंपरा, जो वैदिक पठन होता है संस्कृत में होता है, उसका पठन करने का एक परंपरा है, एक तरीका है, वो हमारी एक सांस्कृतिक वो जो बोलते हैं ठेव है, जो आगे आने वाली पुश्तों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक दिशा दर्शक के तौर पर काम में आएगी। 2005 में उत्तर भारत में रामलीला का जो सादरीकरण होता है वो 2005 में आई वो लिस्ट में। 2010 में राजस्थान का कालबेलिया नाम का लोक संगीत और लोक नृत्य, जिसको ये चीज़ें जो हैं इंटेंजिबल है। 2010 में ही पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ का छाऊ नृत्य जो डांस है पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का, वो 2010 में यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आ गया। उसके बाद में केरल का ही मुडियट्टू विधि नाट्य और नृत्य नाट्य केरल का, वो भी नेशनल हेरिटेज में आ गया। उसके बाद में लद्दाख, जम्मू और कश्मीर का बौद्ध मंत्र पठन की परंपरा 2012 में आई। 2013 में मणिपुर की संकीर्तन परंपरा, 2014 में पंजाब में सा ठटोरा जमात का जो बर्तन बनाने का जो कला है, बर्तन बनाने की जो परंपरा है, वो 2014 में पंजाब की ठटेरा जमात की, वो भारत के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में उसका समावेश किया गया। उसके बाद में 2016 में नवरोज का और 2016 में योग क्रिया, जिसको हम योगा बोलते हैं, जिसके अभी वर्तमान में क्लासेस बहुत से आते हैं, योगा के बारे में जानकारी देती है। ये सब चीज़ें हैं, हमारे इतिहास है, हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है। इसका भारत के इंटेंजिबल कल्चरल मतलब अमूर्त सांस्कृतिक वारसा में उसका समावेश किया गया। भारत की जो वारसा मतलब जो प्लेसेस है सांस्कृतिक प्लेसेस, जैसे कि 1983 में आगरा का किला, 1983 में अजंता वेरूल की वहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं वहाँ की लेनी, 1983 में ही ताजमहल, महाबलीपुरम 1984 में महाबलीपुरम की जो मंदिर से, जो मंदिर देवी देवताओं के मंदिर से, 1984 में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, 1986 में गोवा में जो चर्चेस है, कॉन्वेंट्स है उसका, और 1986 में फतेहपुर सिकरी वहाँ का बुलंद दरवाज़ा, 1986 में हम्पी की वास्तु संकुल जो हम्पी कर्नाटक में स्थित है, 1986 में खजुराहो की जो मंदिर है वहाँ पे जो स्कल्पचर्स बनाए गए उसका, और 1987 में एलिफेंटा घारापुर की लेनी, 1987 में चौल मंदिर, तंजावर के बृहदीश्वर मंदिर वो लिस्ट में इंक्लूड हुआ। भारत की जो सांस्कृतिक स्थल है, जो मूर्त है,
इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसकी लिस्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। 2004 में गंगैकोंड चोलीश्वरम मंदिर और दारासुरम मंदिर, ऐतेश्वर मंदिर, ऐतराश्वर मंदिर, 1987 में पट्टकदल इधर की मंदिर, 1979 में सांची का स्तूप, 1993 में हुमायूं की कब्र, 1993 में कुतुब मीनार और उसके इर्द गिर्द की जो वास्तु जो प्लेसेस है उसकी लिस्ट में समाविष्ट किया गया। 1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, द कालका शिमला रेलवे उनका समावेश किया गया। 2002 में बोध गया और महाबोधि मंदिर और उधर का परिसर। 2003 में भीमबेटका इधर का शैलाश्रय। 2004 में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय स्थल। 2004 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई का। 2007 में लाल किला दिल्ली का। 2010 में जंतर मंतर और जयपुर का जो हम जिसको हम पिंक सिटी के नाम पे जानते हैं। 2013 में राजस्थान के जो पर्वतीय किले हैं उनकी या इस यादी में या लिस्ट में समावेश हो गया। उसके बाद में 2014 में गुजरात का पाटन का रानी का बाग। 2016 में नालंदा का महाविहार पुरातत्वीय स्थल। 2016 में चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स। 2017 अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। इन चीज़ों का भारत के जागतिक वारसा स्थलों में समावेश किया है। सांस्कृतिक जागतिक स्थल भारत के जो है उनका समावेश हो गया। और भारत के जो जागतिक स्थल है नैसर्गिक जो नेचुरली हो गए 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में केवल देव राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में ही मानस वन्यजीव अभयारण्य, 1987 में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, 1988 में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, 2005 में राष्ट्रीय उद्यान, 2012 में पश्चिम घाट जहाँ का जिसको हम कास पठार भी बोलते हैं सतारा डिस्ट्रिक्ट में आता है महाराष्ट्र में, 2014 में ग्रेट हिमालयन पार्क। और भारत का जो विश्व स्वरूप का जागतिक वारसा स्थल है 2016 कांचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इन चीज़ों का इन स्थलों का हमारा जो समावेश हो गया है यूनेस्को के मार्गदर्शन के दिशादर्शक मार्गदर्शन जो लिस्ट है उनके रूल के हिसाब से इनका समावेश किया गया है। देन बाद में हम इसको बता सकते हैं जो हम देख सकते हैं जैसे कि कैलाश का बेरू मंदिर हो या ताजमहल हो या सांची का स्तूप हो, कुतुब मीनार हो या नेचुरल कल्चरल हेरिटेज में जैसे कि काजीरंगा हो या सुंदरबन हो या पश्चिम घाट हो जैसे चीज़ों का समावेश इन लिस्ट में किया गया है एज पर गाइडलाइन ऑफ यूनेस्को। इनका स्थल इन चीज़ों का इतिहास में समावेश होगा इसके लिए एक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज एक स्वयंसेवी संस्था 1984 से लेकर आज तक वो कार्य कर रही है। उनका प्रमुख कार्य है सांस्कृतिक और नैसर्गिक जो स्थल है उनका जतन करना, उनका संवर्धन करना और इसके लिए बहुत से तज्ञ लोगों का सहभाग इसमें आवश्यक है। उन लोगों का समावेश करके उन तज्ञ लोगों की जानकारी, उनका तजुर्बा, उनका अनुभव, उनका अभ्यास, इनका समावेश करके वो हम लोगों के मन में इतिहास के बारे में जो जिज्ञासा है, कुतूहल है, इतिहास जानने के बारे में जिनकी क्यूरियसिटी ज़्यादा जागृत है उनके लिए एक महत्वपूर्ण काम होता है। ये इतिहास द्वारा किया जा सकता है। और जो इस प्रकल्प के अंतर्गत मतलब जो इंडियन सर्वे जिसको हम इंटैक्ट बोल सकते हैं, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, ये जो वर्किंग करता है किसी का मूल स्वरूप न बदलते हुए
उनका जतन और उनका संवर्धन करना शक्य हो सकता है। उसके लिए वहाँ के लोगों को इन्वॉल्वमेंट करके लेना, उसमें उनके बारे में उनको बताना, हमारी संस्कृति के बारे में जतन करना और उसके ज़रिए लोगों में रोज़गार पैदा करना या व्यवहार क्या बोलते हैं हम उनको रोज़गार देने के लिए एक किफ़ायती काम भी हो सकता है। उनका अगर हम नियोजन कर सकते हैं, स्थानिक लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर के उनको हम प्रोत्साहित करके उनका व्यवसाय को चालना दे सकते हैं और उसके बारे में हम जतन कर सकते हैं। मान लीजिए किसी मंदिर का हो या किसी किले का हो या किसी नेचुरल हेरिटेज का हो, इसके बारे में जो तज्ञ लोग हैं उनका समावेश होने के बाद हम मंदिरों के बारे में, किले के बारे में या कुछ उद्यान जो अभयारण्य जिसको हम बोल सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को मौखिक तौर पर बता के उसका जतन कर सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं और जिसके ज़रिए लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। अब उसके आगे एफिलेटेड professional fields affected to the applied history, museums and archives, prevention and conservation of historical sites, museum curators are appointed, entertainment and mass media, opportunity for the professional on the project in the fields of applied history, experts like a historian, archaeologists, psychologists, legal experts, etc. are assigned to new projects. Technicians like engineer, architects, skilled photographers are here. Museum curators are appointed. Related industry and business gets started. Okay, museums and museums of UR. The earliest museum in the world, 6th century BCE, before Christ era, was discovered in the city of UR in Mesopotamia. This museum was discovered by the British archaeologist Sir Leonard Bowley. It was built by then Princess Ilinglidi. She was also curator of the museum. The clay tablets inscribed with the description and exhibited artifacts is a noteworthy features of this museum. Okay, these are some things, मतलब संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र जो है, जो हमने अभी बता दिया, उनके जो क्षेत्र है जो उल्लेख किया गया, मतलब जो मुझे लिस्ट मैंने पढ़ के आपको बताई, जैसे कि चर्च हो, वैदिक पठन की परंपरा हो या नृत्य परंपरा हो या बर्तन बनाने की कला हो, ताजमहल हो, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो या बम्बई का घारापुरी एलिफेंटा की लेनी हो या सांची का स्तूप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो या लाल किला हो, जंतर मंतर हो या अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर हो, नालंदा का पुरातत्वीय स्थल हो या उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं उनका संवर्धन करने के लिए हमको उस क्षेत्र में जो जानकार है, जैसे कि मान लो इतिहासकार हो, जो आर्कियोलॉजिस्ट हो, जो उसके बारे में बता सके कि लोगों को ये मंदिर कब बना हुआ है, ये किला कब का बना हुआ है, ये कला कब की है, जो परंपरा पीढ़ी जात हमको पता है। बर्तन बनाने की पंजाब की जो कला हो, पीतल के जो बर्तन बनाते हैं ठठोरा समाज वाला, उनकी किला, उसका हमको एक ट्रैक के सिस्टमेटिक तरह से नियोजन करके उनके बारे में लोगों को बता के उस परंपरा को हम जतन कर सकते हैं। और जो उसका सार्वजनिक जो धोरण है लोगों के लिए, उसके लिए इतिहास का ज्ञान पूरक होना चाहिए और इतिहास का ज्ञान उसके लिए पूरक होता है। जैसे संग्रहालय हो या अभिलेखाकार हो, जैसे कि इतिहास की जो वस्तुएं हैं, जैसे कि तलवार हो, ढाल हो, भाला हो, जिसकी तोफ हो, रंगाड़ा हो, उसका जतन संग्रहालय या कुछ हस्तलिखित हो, शिल्प हो, पेंटिंग्स हो, उनका म्यूजियम, ऐतिहासिक जो स्थल है उनका जतन और संवर्धन, पर्यटन और उसका आतिथ्य और मनोरंजन या संपर्क के माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं, उसका संवर्धन कर सकते हैं और उसके ज़रिए हमको रोज़गार भी मिल सकता है। उसके बारे में अभिलेखाकार में जो कागज़ है उनके दफ्तरों में जो है उसके
जो जो पुरानी फिल्म्स हैं उनका भी जतन हम कर सकते हैं। दिल्ली के अभिलेखागार में, दिल्ली का जो म्यूजियम है, हर राज्य का स्वतंत्र अभिलेखागार वहाँ पे अभी उपलब्ध है। वहाँ पे हर स्टेट के जो कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो स्थल है, जिसका कागज है, जिसका शिल्प है, पेंटिंग्स है, उन चीज़ों को संभाल के रखा गया है। हर एक राज्य का स्वतंत्र अभिलेखागार वहाँ पे मौजूद है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता के बारे में हम देख सकते हैं। जो कोलकाता स्थित इंडियन म्यूजियम, उसकी स्थापना एशियाटिक सोसाइटी की तरफ से 1814 में हुई। नेथनियल वॉलिक, ये डैनिश वनस्पति शास्त्रज्ञ हुआ था, वो संस्थापक और संग्रहपाल थे। उन्होंने इस संग्रहालय का छायाचित्र 1905 का हम किताबों में भी देख सकते हैं या इंटरनेट के जरिए भी देख सकते हैं। उस संग्रहालय में कला, पुरातत्व और मानव शास्त्र ऐसे 3 प्रमुख विभाग हैं। उनके संलग्न उनका जतन, प्रकाशन, छायाचित्रण और उसका सादरीकरण और प्रशिक्षण, ग्रंथालय, सुरक्षा विभाग, ऐसे वहाँ पे विभाग कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में आज भी हम देख सकते हैं। हर क्षेत्र का व्यवस्थापन के लिए जो विशेष कौशल्य प्राप्त मनुष्य है, मनुष्य बल की हमको ज़रूरत है। जैसे कि स्थापत्य विशारद, अभियंता स्थापत्य विशारद हो, या अभियंता हो, इतिहासकार हो, पुरातत्व ज्ञानी हो, संग्रहपाल हो, समाजशास्त्रज्ञ हो, अभिलेखाकार व्यवस्थापक हो, कायदे का जानकार हो, कायदे तज्ञ जिसको हम बोल सकते हैं, छायाचित्रण में अपने फोटोग्राफर का तज्ञ हो। इन चीज़ों पर नहीं होता, बहुत से लोगों का इसमें ज़रूरी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसका ऐतिहासिक पार्श्वभूमि का ज्ञान वो बहुत, मतलब जितना सफिशेंट ज्ञान है वो जरूरी होता है, और उनके ज़रिए इनका हम जतन और संवर्धन कर सकते हैं। और विविध क्षेत्र के जो व्यावसायिक लोग हैं उनको हम रोजगार उपलब्ध कर दे सकते हैं। ओके, इस पाठ में हमने इतिहास संबंधित कार्यक्षेत्रों के जो लोगों को प्रबोधन कर सकते हैं, ऐसा इतिहास है। नैसर्गिक जो चीज़ें हैं उनका जतन और संवर्धन करने के लिए समाज में जागृति किस तरह से की जा सकती है, इसके लिए इतिहास के ज्ञान का उपयोग किया जा सकता है। और उसके ज़रिए जो उसके कौशल्य है और उनका जो व्यवसाय है, वहाँ भी पारंपरिक उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ोतरी की जा सकती है, जिसके ज़रिए लोगों को ज्ञान दिया जा सकता है। उसका नियोजन और उसके बारे में जो विचार है वो इतिहास में किया गया है। और सार्वजनिक स्थल का जो विद्रूपीकरण न हो, वो आने वाली पीढ़ी उसका संवर्धन हो, इसके लिए भी इतिहास जरूरी है। ओके, यहाँ पे इस पाठ का ये पाठ पूरा खत्म होता है। आपको अगर कोई शंका हो, यू मे कॉल मी फ्रैंकली, आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।